Good morning, students. Myself, Nanak Singh. Welcome to the spoken English class. Students, कल ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ present indefinite ਜਾਂ ਫਿਰ simple present tense. So today we will discuss the next tense that is called present progressive ਜਾਂ ਫਿਰ present continuous tense. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ देखो स्टूडेंट्स एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ कोई भी एक्शन कोई भी काम जो हुण चल रहा है जिमें मैं तुहानूं हुण लैक्चर दे रहा आई एम डिलीवरिंग अ लैक्चर आई एम डिलीवरिंग अ लैक्चर जिमें मैं एक लैक्चर दे रहा मैं हुण ये काम कर रहा कोई भी काम जिहड़ा हुण वापर रहा उदों असीं किहड़ा टेंस यूज करते हैं प्रैजेंट कंटीन्यूज टेंस यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हो आई एम वॉचिंग आ टी वी कुछ स्टूडेंट्स हुण टी वी देख रहे होने तो उन्हों का हुण एक्शन की हो रहा हुण की कर रहा हो जिमें आई एम वॉचिंग आ टी वी। ठीक है स्टूडेंट्स एक तो ये उत्थे यूज करना जिहड़ा एक्शन तुहाडा हुण एट प्रैजेंट दे विच चल रहा। सैकंड प्रैजेंट कंटीन्यूज टेंस नूं कित्थे यूज करना स्टूडेंट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग रैगूलरली कोई भी काम कोई भी एक्शन जिहड़ा रैगूलरली डेली की है चल रहा बट इज नॉट फिनिश्ड पर अजे तक खत्म नहीं होया हैगा कोई काम जो कल तो चल रहा हैगा ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ प्रोग्रैस है जिहड़ा अजे की है प्रोग्रैस दे विच है अजे अनफिनिश्ड है अजे चल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स कोई भी एक्शन जिहड़ा की है रैगूलरली हुंदा है पिछले टाइम तो चलिया रहा है तो हुण भी चल रहा है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ग्रेट बुक मैं एक महान किताब पढ़ रहा ਜਾਂ एक चंगी किताब पढ़ रहा। तो स्टूडेंट्स की है किताब सिर्फ अज तो शुरू नहीं की सी हुण तो पढ़नी शुरू नहीं की मैं पिछले टाइम तो स्टार्ट की है तो वो स्टार्ट करके हुण भी वो एक्शन की है मेरा कंटिन्यू है हुण भी वो एक्शन मैं कर रहा पढ़ रहा कदे 2 पेज कदे 10 पेज कदे 5 पेज तो एक्शन की है लॉन्गर है लंबा एक्शन है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ लॉन्गर एक्शन आंदा उत्थे असीं प्रैजेंट कंटीन्यूस टेंस यूज करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स एक होर देख लो कित्थे यूज करना फॉर टैंपरेरी और न्यू हैबिट्स कुछ साडियां आदतां की हुंदियां ने नवीं आदतां दे शिकार हो जांदे नवीं आदतां साडे विच आ जांदियां ने जां नवीं आदतां किवें देखो कई स्टूडेंट्स हुण छुट्टियां दे विच पढ़ना शुरू कर दिता उन्होंने है ना तो वो की है न्यू हैबिट है ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਯੂਜ ਦਿਸ ਵਿਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ these days at the moment ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ these days ਅਤੇ at the moment ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ he is eating a lot these days he is eating a lot ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ these days ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਫਾਰ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ that will take place in the near future, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੁਮਾਰੋ, ਲੇਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਐਟ 7 PM, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ 8 PM 7 PM, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਆਫ ਡੇਜ, ਸੰਡੇ, ਔਨ ਸੰਡੇ, ਔਨ ਮੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੂਲਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਮੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਓ, ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼, ਐਮ ਅਤੇ ਆਰ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ING ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4th ਅਤੇ 5th ਫੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ING ਜਾਂ 4th ਫੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ, ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਅਬਜੈਕਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਮ ਅਤੇ ਆਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਮ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂ, ਵੀ, ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ। ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਮ। ਤਾਂ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਗਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਓ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਲਗਾਓ, ਲਿਵ ਲਗਾ ਲਈ, ਨਾਲ ING ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 4th ਫੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਬਜੈਕਟ ਲਗਾਓ, ਲੰਡਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਲੰਡਨ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਦੇ
ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਦੇ। ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਰ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਆਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਓ। ਪਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲਗਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾ। ਪਲੇਇੰਗ ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड साडा की हो गया स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे थर्ड एग्जाम्पल देखो, शी इज़ राइटिंग आ नॉवल। शी इज़ राइटिंग आ नॉवल। शी इज़ राइटिंग आ नॉवल। वो एक नॉवल लिख रही है। मीनस कि एक्शन अजे चल रहा है, पिछले टाइम तो शुरू किया, अजे भी नॉवल लिख रही है, एक्शन कंटिन्यू है, प्रोग्रैस दे विच है। तां करके स्टूडेंट्स ये किहड़ा है? प्रैजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन नॉवल लिख रही है? शी। तो शी की है? सब्जैक्ट। शी सिंगुलर सब्जैक्ट है, तां करके हैल्पिंग वर्ब असी इज यूज करनी है। राइट वर्ब की फस्ट फॉर्म है, नाल आई एन जी लगा दिता। राइटिंग आ नॉवल की हो गया स्टूडेंट्स? साडा ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज़ राइटिंग आ नॉवल। तो ये सी स्टूडेंट्स एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जिन्होंने असी स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिन्हों में हाँ बच्ची या सकारात्मक गल्लां कीतियां जांदियां। इसी तरह स्टूडेंट्स असी हुण जदों भी प्रैजेंट कंटिन्यूस टेंस के नैगेटिव बनाने हैं, नैगेटिव सेंटेंस बनाने का पैटर्न की है देखो। सब तो पहला कहते सबजैक्ट लो, नाल हैल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर यूज करो। हुण इज़ एम आर कित्थे यूज करनियां ने? सिंगुलर सबजैक्ट ते प्लूरल सबजैक्ट दे नाल किहड़ा यूज करना है? मैं तुहानूं ऑलरेडी एफर्मेटिव सेंटेंस दे विच दस दिता। बट नैगेटिव सेंटेंस बना रहे तां करके नाल हैल्पिंग वर्ब्स तो बाद नॉट यूज करो। एंड आफ्टर द नेगेटिविटी वी विल यूज फस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, जिसनों असीं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दें, तो एंड ते ऑब्जेक्ट। तो इस तरह एक एग्जाम्पल देखो, आई एम नॉट लिविंग इन लंडन। मैं लंडन विच नहीं रह रहा हाँ। जो एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे उदों आप कह रहे थे मैं लंडन विच रह रहा हाँ, पर जो आप नैगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उदों आप की कहांगे? मैं लंडन विच नहीं रह रहा हाँ। तो स्टूडेंट्स की है पिछे का देखो पंजाबी दे विच उही रहा हाँ आ गया, तुहानूं पता लग गया प्रैजेंट कंटिन्यूज है। पर तुसी देखा कि ये नॉट है, नहीं लग्या। नहीं मीनज नैगेटिव है, सेंटेंस साडा नैगेटिव है, तां करके प्रैजेंट कंटिन्यूज का एक किहड़ा सेंटेंस है? नैगेटिव सेंटेंस है। तो आप नैगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। सारे तो पहला की है? सबजैक्ट। तो दे स्टूडेंट्स की है? सॉरी आई स्टूडेंट्स की है? सबजैक्ट। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब एम, नाल नैगेटिव बना रहे हैं नॉट, आप नॉट लगाया हुआ। वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी, लिव नाल आई एन जी। ऑब्जेक्ट इन लंडन स्टूडेंट्स साडा की हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सैकेंड एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। वो ग्राउंड विच नहीं खेड रहे हैं। वो ग्राउंड विच नहीं खेड रहे हैं। हुण स्टूडेंट्स दे सबजैक्ट, दे साडा प्लूरल सबजैक्ट है, तां करके हैल्पिंग वर्ब असीं की यूज की है? ये आर यूज की है। उस तो बाद नैगेटिव सेंटेंस है, तां करके नॉट लगाया। प्ले, प्ले वर्ब की किहड़ी फॉर्म है? फस्ट। प्ले, प्लेड, प्लेड नाल आई एन जी लगा के असीं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बना दिता प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड साडा स्टूडेंट्स की हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड विच नहीं खेड रहे हैं। हाँ जी। शी इज़ नॉट राइटिंग आ नॉवल। वो एक नॉवल नहीं लिख रही है, पिछे रही है। हुण देखो स्टूडेंट्स एक्शन कौन कर रही सी? शी की है साडी? सबजैक्ट। शी साडा सिंगुलर सबजैक्ट है, तां करके हैल्पिंग वर्ब तिन्नां दे विचों असीं की यूज की है? इज यूज की है। दैन पैटर्न कह रहा साडे नाल नैगेटिव बना रहे हो तो नॉट यूज करो, आप नॉट लगाया। उस तो बाद राइट, रॉट, रिटन। राइट वर्ब की फस्ट फॉर्म है, नाल आप आई एन जी लगा के राइटिंग बन गया। ऑब्जेक्ट आ नॉवल साडा स्टूडेंट्स की हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सी स्टूडेंट्स साडे प्रैजेंट कंटिन्यूज दे
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਨੇ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ING ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ, ਫਿਰ ऑब्जेक्ट। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल ऑलवेज यूज इंटैरोगेटिव साइन, क्योंकि इंटैरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स सेंटेंस के अंत दे विच जेकर असीं इंटैरोगेटिव साइन यूज नहीं करते तो साडा सेंटेंस रॉन्ग है। हुण एग्जाम्पल देखो, जदों तुसीं किसी नूं सवाल पुछदे हो है ना, वैन यू पुट अ क्वेश्चन फॉर समवन, दोज सेंटेंसिज आर कॉल्ड इंटैरोगेटिव सेंटेंस। जदों आपां किसी नूं कोई प्रश्न पुछदे हां, सवाल जवाब करते हैं, वो साडा प्रश्नवाचक जां इंटैरोगेटिव सेंटेंस हुंदा है। इस तरह स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, देखो, आर यू ड्रिंकिंग टी, की तुसीं चाह पी रहे हो, अंत ते की है रहे हो, रहे हो तो पता लग गया कि ये किहड़ा हैगा साडा प्रैजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पर प्रैजेंट कंटीन्यूअस का यही एफर्मेटिव है, नैगेटिव है या फिर इंटैरोगेटिव है। तुहानूं पता लगे कि असीं उहनूं इवें पुछना कि तुसीं चाह पी रहे हो, तो क्वेश्चन पूछना, तां करके प्रैजेंट कंटीन्यूअस का इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। हुण देखो स्टूडेंट्स, साडा सबजैक्ट की है, जू, जू करके ही असीं अगे हैल्पिंग वर्ब आर चूज की हुई है। उस तो बाद फस्ट फॉर्म नाल ING, ड्रिंक नाल आपां की यूज करता है ING, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट टी साडा की हो गया ऑब्जेक्ट। इंटैरोगेटिव साइन यूज करना, असीं इंटैरोगेटिव साइन यूज कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, इज़ ही वर्किंग एट होम, इज़ ही वर्किंग एट होम। हुण स्टूडेंट्स साडा सबजैक्ट ही है, ही दे नाल साडी हैल्पिंग वर्ब असीं ने देख के लगानी है। कई बार स्टूडेंट्स तुसीं सबजैक्ट देखते नहीं तो सीधी हैल्पिंग वर्ब अगे यूज कर लेंदे हो, नहीं, तुसीं अपने सबजैक्ट नूं ध्यान विच रखते हुए ही तुसीं ने हैल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हुण स्टूडेंट्स हैल्पिंग वर्ब तुहाडी इज़ लगी है इस नाल, क्योंकि सबजैक्ट साडा इज़ सिंगुलर आउणा है। उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ING यूज किया ते एंड ते एट होम, तो फिर इंटैरोगेटिव साइन, इज़ ही वर्किंग एट होम, कि वो घर काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीगे इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह स्टूडेंट्स असीं हुण फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस करांगे, चौथी किस्म सेंटेंस की करांगे, जिसनों असीं नैगेटिव इंटैरोगेटिव सेंटेंस आखदे हां। जिहड़े नैगेटिव भी हुंदे आ, नावाची भी हुंदे आ, ते इंटैरोगेटिव मीन जे प्रश्नवाचक भी हुंदे आ। तां नैगेटिव ते इंटैरोगेटिव दोनों नूं मिला के भी एक न्यू सेंटेंस क्रिएट हुंदा है, जिसनों असीं नैगेटिव इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहने आ, जिन्हां विच प्रश्न भी पूछा जाता है ते नावाची गल भी कीती जांदी है। तां इन्हां नूं बनाउण दा पैटर्न की है स्टूडेंट्स, देखो, सब तो पहलां तां तुसीं ने इज़ एम आर हैल्पिंग वर्ब यूज करनियां ने। उस तो बाद साडा सबजैक्ट, सबजैक्ट तो बाद तुसीं ने नॉट यूज करना है, वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ING, फिर ऑब्जेक्ट ते एंड ते उही साडा इंटैरोगेटिव साइन, क्योंकि असी इंटैरोगेटिव बना रहे हैं, नैगेटिव भी बना रहे हैं, तां करके असी ने यूज किया नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इज़ एम आर प्लस सबजैक्ट प्लस नॉट नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ING, फिर साडा ऑब्जेक्ट ते एंड ते इंटैरोगेटिव साइन, ये साडा नैगेटिव इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनाउण दा पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही नॉट अटेंडिंग द क्लास, कि वो क्लास नहीं ला रहा है, या फिर कि वो क्लास विच हाज़र नहीं हो रहा है। पिछे तो स्टूडेंट्स पंजाबी विच उही आएगा, रहा है, रही है, रहे हन, रहियां हन, पर सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा, नैगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इंटैरोगेटिव, ते दोनों तो मिला के नैगेटिव इंटैरोगेटिव। इज ही नॉट अटेंडिंग द
क्लास कि वो क्लास नहीं ला रहा है। इसी तरह सेम एग्जांपल ਤੁਹਾਡੀ नैक्सट आर दे नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ आर दे नॉट वर्किंग इन द कॉटन मिल कि वो इंडस्ट्री विच कारखाने विच काम नहीं कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन भी पूछे तो नहीं भी यूज किया ਤਾਂ करके जो क्वेश्चन पुट करते हैं विच नहीं भी आउंदा ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ सेंटेंस नैगेटिव इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हुण इन्हां नूं बनाउण दा पैटर्न की सी कहंदे इज़ एम आर साडी हैल्पिंग वर्ब च सबजैक्ट नूं देख के लाओ। हुण की है सबजैक्ट साडा कि वो इंडस्ट्री विच काम नहीं कर रहे सन। हुण प्लूरल है दे बारे गल कर रहे हैं तो दे सबजैक्ट है जो साडा ये की है प्लूरल है ਤਾਂ करके अगे हैल्पिंग वर्ब असीं ने आर यूज की हैगी। उस तो बाद नॉट लगाओ साडा नॉट लगा दिता वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल आई एन जी वर्क तो वर्किंग बना दिता। ऑब्जैक्ट इन द इंडस्ट्री आ गया। इंटैरोगेटिव साइन यूज करो असी इंटैरोगेटिव साइन यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये सीगा प्रैजेंट कंटीन्यूअस टेंस या फिर प्रैजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है जिसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।